Okay, so we'll start with number systems 2 today. Now in this chapter, what we have is finding out units place of a number which has a large power. And it also talks about finding out last 2 digits if there's a number and its power is given to us. Then this question is also primarily based on finding out reminders of numbers with certain big powers. So we are going to fundamentally study these 3 things. So let's just take the first things first. As I said, that let's say we have a number like 2, 3, 7, 8, 4, 7 की power 5, 6, 3, 2, 2. So we have a number like this and we are expected to find out the units place of this number. Yes. So we are expected to find out the units place of this number. So how do we really do this? तुझे मैं क्लास ले रहा हूँ एक बार ना, ठीक. हाँ जी. So the answer is how? अच्छा फिर हाँ ओके. तो तुमने यूनिट्स प्लेस देख के कर दिया. मान लो 32 होता तो भी आंसर तो यही आता आपके हिसाब से. वो पिछली बार वाला तो तुक्का भिड़ गया. मान लेते ही है. तो ऐसा नहीं होएगा जो तुम सोच रहे हो. बट यस, we can find out these questions. This type of questions can be asked, right? Finding out units place. So first I'm trying to tell you the method, the process, and then maybe the shortcut as he's saying कि भाई 4 से डिवाइड करके जो बचेगा उसकी पावर कर देना. बट वहां तक कैसे पहुंचे मैं एक बार मैं आपको समझाना चाहता हूँ. ठीक है. उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी. So what is the concept of cyclicity? Even before cyclicity, let me simplify this question. One way of solving this question is to multiply 2, 3, 7, 8, 4, 7 these number of times. That is one way of doing it. But can we really do this? Nothing. So let's say you solve this number 2, 3, 7, 8, 4, 7 into 2, 3, 7, 8, 4, 7. So what is the process of solving? 7 7s are 49, 7 4s are 8, 28 plus 4, 32, 3, and you'll get something. What is the next step? Multiply. 7 4s are 28, 2 carry 4 4 just 16, 4 16 and 2 18, and so on and so forth. ऐसे जाएगा. Next step would be 2 crosses, and then next step would be 3 crosses, and so on and so forth. And then we will add. You see, the units place will be 9, which is simply the product of these two numbers. That's all. That means if you are interested in finding out units place of a large number, you don't have to find out the multiplication of the complete number. All you are required to do is just find out the units place of the units number. Similarly, if you want to find out the product of, if you want to find out last 2 digits, just think of it. If you have to find out this into this ka last 2 digits, do you have to multiply the complete number, or only multiplication of last 2 digits is sufficient? It is sufficient because see, the last 2 digits will depend on what? It will depend on 9, and then it will depend on 2 and 8. After that, to sare hi kaate. How do you think you got 2? You got 2 by multiplying this number. How do you get this? By multiplying this number. That means the last 2 digit is a product of ultimately the resultant of last 2 numbers. That means if we were interested to find out last 2 numbers, last 2 digits of this power, then our question would have been reduced to 47 ki power 5, 6, 3, 2, 2. If you are interested in only last digit, then my question reduced to 7 की power 5, 6, 3, 2, 2. Making sense? कि अगर हमें किसी नंबर का सिर्फ आखिरी डिजिट निकालना है तो उसके पहले वाले नंबर को हम छोड़ सकते हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है. और अगर हमें लास्ट 2 डिजिट निकालना है तो हम सिर्फ लास्ट 2 डिजिट का पावर या लास्ट 3 डिजिट निकालना होता तो हमारे लिए ये बाकी रिलेवेंट हो जाते और सिर्फ आखिरी के 3 डिजिट
रिलेवेंट रहते। यही एक तरीका है इसको करने का। ये बात समझ में आती है सभी को? नो प्रॉब्लम्स? नो। इन दिस केस वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द यूनिट्स प्लेस ऑफ दिस पावर। ठीक है, सो यूनिट्स प्लेस ऑफ दिस पावर can be found by understanding the concept of cyclicity. What is the cyclicity concept? Let us say you have a number like 1, right? 1 ka square is 1, 2 ka square is, sorry, 1 ka, let's say 1 ki power 1 is 1, 1 square is also 1, 1 cube is also 1, 1 ki power 4 is also 1, 1 ki power 5 is also 1. So if you have a question 8 4 3 7 8 1 whole ki power 5 7 8 3 2, what is the answer? 1. Because no matter whatever is in units place, if it is 1, no matter what power you raise 1, it will always be 1 only. No problem. Similarly, yes, we may have something like 5. 5 ki power 1 is 5. 5 square is 25, वापिस 5. 5 cube is 125, वापिस 5. 5 की पावर 4 is 625, वापिस 5. 5 की पावर 5, वापिस 5. इसका मतलब मान लो ये क्वेश्चन होता मेरा 84385, उसकी पावर कुछ भी कर देते 57832, तो आंसर क्या आता है इसका? 5. क्यों आता है इसका आंसर 5? क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी 1 है। तो जो यूनिट्स प्लेस में होगा वही आंसर आएगा, चाहे कितनी भी बड़ी पावर ले लें। ऐसे ही हमारी साइक्लिसिटी अगर हम 6 की देखें तो क्या है? 6 6 स्क्वायर इज 36, 6 क्यूब इज 216, वंस अगेन 6 मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, 6 की पावर 4 इज 6। क्या मतलब है? मान लो एक क्वेश्चन होता 84386 होल की पावर 578921, कुछ भी होता, आंसर क्या आता? 6। ऐसे ही अगर आखिरी में 0 होता तो 0। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से एंड हो जाए, इस तरीके से एंड हो जाए, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर हमें पता ही है। बट इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ऐसे ना हो, कुछ और भी आ सकता है। सो लेट अस से आई हैव ए नंबर लाइक 2, मान लेते हैं मेरे पास एंड में 2 आ गया, तो हम 2 की साइक्लिसिटी 2 की पावर 1 2, 2 स्क्वायर 4, 2 क्यूब 2 की पावर 4 2 की पावर 5 30, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 2 की पावर 8। व्हाट डू यू सी? 2486 2486 2486। इसका मतलब है, इसको बोलते हैं साइक्लिसिटी कितनी है? 4। इसका मतलब ये है कि मान लो मेरे पास कोई नंबर हो, 2 की पावर 4 करूंगा तो भी आंसर क्या आएगा? 6। 2 की पावर 8 होगा तो भी आंसर क्या आएगा? 6। 2 की पावर 12 होगा तो भी आंसर क्या आएगा? यानी 2 की पावर 4 इंटू कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा? जैसे 4 इंटू 1 4 इंटू 2 4 इंटू 3, समझ में आ रहा है? यानी 2 की पावर 4 इंटू 8432 होता, तो आंसर क्या आता? 6। यानी 4 इंटू समथिंग कुछ भी करोगे तो आंसर 6 आएगा। क्यों? क्योंकि पैटर्न रिपीट कर रहा है। क्या पैटर्न है? 2486 2486 आता जाएगा। ये बात समझ में आती है? इसकी साइक्लिसिटी 4 है। अब हम देखते हैं हमारी साइक्लिसिटी 3 की। 3 की पावर 1 3, 3 स्क्वायर इज 9, 3 क्यूब इज 27, 3 की पावर 4 इज 81, 3 की पावर 5 is 343, 3 की पावर 6 is 729, 3 की पावर 7 is 3 की पावर 8। What do you see? साइक्लिसिटी एट 4, यानी कि 3 की जो साइक्लिसिटी है वो 3971 3971 है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है अगर मेरे पास 3 की पावर 4 होगा तो आंसर 1 आएगा, 3 की पावर 2 इंटू 4 होगा तो भी आंसर 8 है ना, 3 की पावर 3 इंटू 4 होगा 12 तो भी आंसर, तो 3 की पावर 4 इंटू या समथिंग कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा? 1। ये तो समझ में आ रहा है सभी को? तो इसको हम साइक्लिसिटी 1 बोलते हैं। अच्छा, वैसे ही हम एक चीज और देखते हैं। मान लो 4 की साइक्लिसिटी, 4 की पावर 1 4, 4 स्क्वायर कितना होता है? 16, 4 क्यूब कितना होता है? 64, 4 की पावर 4 कितना होएगा? 256। इसकी साइक्लिसिटी क्या है? 4646। यानी अगर इवन ऑड पावर है तो 1 आएगा, इवन पावर है तो 6 आएगा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा। मान लेते हैं हमारे पास कोई क्वेश्चन होता 43784 होल की पावर 4567 मान लेते हैं। अब 4 की पावर में क्या आ रहा है? ऑड नंबर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4। अगर यहाँ पे 7 8 होता तो इस 4 की पावर कितना है? इवन नंबर, तो आंसर क्या हो जाता? 6। तो 4 की साइक्लिसिटी क्या है मेरे पास? 2।
4 की साइक्लिसिटी क्या है? ये बात समझ में आती है? 5 हम कर चुके हैं, 6 हम कर चुके हैं। 7 की साइक्लिसिटी देखो, 7 की पावर 1 7, 7 स्क्वायर इज 49, 7 क्यूब इज है 343, तो 3 आ जाएगा। 7 की पावर 4 1 आ जाएगा। 7 की पावर 5 7 आ जाएगा। 7 की पावर 6। क्या चीज समझ में आ रहा है इसमें? इसका मतलब है 4 की साइक्लिसिटी भी 7 की साइक्लिसिटी भी 4 है। इसका मतलब अगर हमारे पास आखिरी में कोई नंबर 7 की पावर 4 इंटू कुछ भी करोगे तो आंसर क्या आना है? 1 आना है। समझ में आ रही बात? 8 की साइक्लिसिटी क्या है? व्हाट डू यू सी द साइक्लिसिटी? 4। इसका मतलब है 8 की पावर 4 इंटू कुछ भी करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए? 6। 9 की साइक्लिसिटी क्या है? इसका मतलब अगर 9 पे पावर ऑड नंबर आ जाएगा तो आंसर 9 आ जाएगा, और अगर इवन आ जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो 4 और 6 भी आसान हो गया, कोई चक्कर ही नहीं है। सिर्फ बचा क्या? 2 3 7 8। ठीक है, अब मान लेते हैं हमारा यही वाला क्वेश्चन है, ये वाला 7 की पावर 5 6 3 2 2 5 6 3। ठीक है, फिलहाल समझाने के लिए कर रहा हूं मैं। हमें पता है 7 की पावर 4 इंटू कुछ भी करेंगे उसका यूनिट्स प्लेस तो हमें पता ही है, क्या आएगा? 1। तो हम इसको करते हैं 7 की पावर 4 इंटू, कितना बनेगा? 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 0 8 जा 32, 0 प्लस 2। ऐसा कर सकता हूं मैं इस नंबर को? इसको कैसे लिख सकता हूँ? 7 की पावर 4 इंटू 14080 इंटू 7 का स्क्वायर चलेगा? ये पता है ना? मान लेते हैं 7 की पावर 3 प्लस 2 है, तो इसको कैसे कर सकते हैं? 7 की पावर 3 इंटू 7 कर सकते हैं ना? बेसिस आर इक्वल, पावर्स कैन बी एडेड। इसका आंसर हमें ऑलरेडी पता है। क्या पता है? क्यों पता है? पावर 4 इंटू समथिंग है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। इसका हमें पता है 49 या 9 आएगा। अब यूनिट्स प्लेस इंटू यूनिट्स प्लेस करेंगे तो यूनिट्स प्लेस आ जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 9, जो तुमने 2 देख के बता दिया था। ठीक है, इसलिए 4 से अब देखो, जो नंबर 2 के बाद रिपीट हो रहा है वो 4 के बाद तो रिपीट होगा ही होगा, और जो नंबर 1 के बाद रिपीट हो रहा है वो भी 4 के बाद रिपीट होगा ही होगा। समझ में आ रही बात? इसीलिए अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, 8 की पावर 5 6 3 5 मान लो, हमें क्या करना है? इसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। और मैंने आपको कल या परसों जब हम पढ़ रहे थे, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या था? इफ द लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, आई कैन क्लेम द एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो इसका मतलब रिमाइंडर निकालने के लिए सिर्फ लास्ट 2 डिजिट डिवाइड करना है 4 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? -1 या +3। 8 चौके 32, 3 बचेगा। 8 क्यूब कितना होता है? 8 8 जा 64, 4 इंटू 8 32। आंसर क्या आएगा? 2। यूनिट्स प्लेस निकालना है हमें। मेकिंग सेंस? सो द शॉर्टकट फॉर हैंडलिंग दिस इज, no matter what the number is, how large the number is, all you have to do is take last 2 digits, है ना, and divide that number by 4. Whatever is the remainder, your answer will always be units placed to the power of that particular रिमाइंडर। समझ में आ रहा है? तो देखने में कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो उसको हमें सिंप्लीफाई करना है। एग्जाम्पल फिर से ले लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास 3 7 4 8 5 8 की पावर 4 3 7 2 3 है मान लो। ठीक, सबसे पहले यूनिट्स प्लेस निकालना है, तो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, वी कैन फॉरगेट अबाउट दिस। सो माय क्वेश्चन इज रेड्यूस्ड टू 8 की पावर 4 3 7 2 3। Then I told you the easiest way is take the last 2 digits and find out the remainder. So what is the remainder? 3. So answer will be 8 की power 3. So last digit of 8 cube is 64 2. So the answer this is the question.
आ रही बात समझ में? द ओनली प्रॉब्लम इज व्हाट इफ देयर इज नो रिमाइंडर, व्हाट इफ देयर इज नो रिमाइंडर. For example, this question would have been 4, 3, 7, 2, 4 मान लेते हैं. Now when you divide this number, no reminder. If there is no reminder, it means this can be written as 8 की power 4 into something. And 8 की power 4 into something का मतलब है जो यूनिट जहां पे जो साइक्लिसिटी है, इसका मतलब अल्टीमेटली इसका आंसर क्या है? 8 की पावर 4 है ना, तो 8 कितना बन जाएगा? 6, क्योंकि साइक्लिसिटी 6 है. इसका मतलब ये है कि अगर रिमाइंडर आ गया तो यूनिट्स प्लेस की पावर रिमाइंडर हो जाएगा, और अगर रिमाइंडर नहीं आया तो यूनिट्स प्लेस की पावर 4, क्योंकि 4 का मल्टीपल है. साइक्लिसिटी 4 पे तो आनी ही आनी है, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. कैसे पता आनी ही आनी? ये हमने ऊपर किया हुआ है, देखो सबकी साइक्लिसिटी 4 पे आ ही रही है. ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ. मान लेते हैं यही क्वेश्चन आ जाता कि 3, 4, 7, 8 की पावर 5, 4, 3 डिवाइडेड बाई 10, व्हाट इज द रिमाइंडर? हमें क्या निकालना है? इसका रिमाइंडर निकालना है. अब कैसे करोगे इसको? 3, 4, 8, 7, 8 की पावर 4, 543. I have to divide it by 10 and I have to find out the remainder. क्या होगा इसका आंसर? ओके, चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आसान सा. 3, 4, 7 होता, 8 होता, इसको 10 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या आता? रिमाइंडर निकालना है अपने को, नहीं तो यहाँ यूनिट्स प्लेस क्या है? अच्छा, मान लो मैंने कहा 34 डिवाइडेड बाय 10, रिमाइंडर क्या है? कैसे आया? डिवाइड, यानी 34 इन डिवाइड बाय 10 किया तो 10 3 जा 30, रिमाइंडर 4 है ना. अच्छा, अगर ये करते तो रिमाइंडर क्या आता? कैसे आता? 347 डिवाइडेड बाय 10 करते, 10 3 जा 30 बनता, 47 बनता, 4 जा 40 बनता, 78 बनता, 7 बनता. कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है? अगर किसी नंबर को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या है? लास्ट डिजिट विच इज यूनिट्स प्लेस. इसका मतलब है दिस क्वेश्चन इज एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज द यूनिट्स प्लेस ऑफ 3, 4, 7, 8 की पावर 543. इसका इनडायरेक्ट क्वेश्चन ही तो है. समझ में आ रहा है? 10 से रिमाइंडर निकालने का क्या मतलब है? लास्ट डिजिट निकालना, यूनिट प्लेस निकालना. यूनिट प्लेस निकालने का शॉर्टकट अभी आपने किया है. इस केस में 4 से डिवाइड करोगे 3 बचेगा, 8 का क्यूब बनाएगा 64, आंसर आएगा 2, है ना. तो इसका रिमाइंडर क्या बनेगा? 2. दैट्स ऑल, क्वेश्चन खत्म. अब इसमें एक चीज और हो सकती है इस क्वेश्चन में. अब मैं नेक्स्ट लेवल पे जा रहा हूं. यही क्वेश्चन मान लो पूछ लेता कि भाई 3, 4, 7, 8 की पावर 543 डिवाइडेड बाय 5, फिर क्या रिमाइंडर होता? इसका रिमाइंडर भी 2 ही आता. अच्छा, अगर ये क्वेश्चन होता 3, 4, 7, 8 की पावर 543 डिवाइडेड बाय 2, तो रिमाइंडर क्या होता? इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, इवन नंबर है ना, इवन नंबर की पावर कुछ भी करोगे इवन आएगा. इवन नंबर को 2 से डिवाइड करोगे तो कुछ बचेगा क्या? 0 आएगा ना रिमाइंडर. कॉमन सेंस की बात है. अब मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो ये कि जैसे हमने 10 से डिवाइड करके मान लो रिमाइंडर निकाल लिया, ठीक है. अगर हमें 10 के फैक्टर्स से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, यानी 10 के फैक्टर्स क्या है? 2, 5, 1 फैक्टर्स यही. 1 एंड 10 को तो छोड़ दें, इसका तो क्या ही क्वेश्चन बनेगा. 10 से तो डिवाइड करके निकाला ही है. अगर हमें 2 और 10 से डिवाइड कर 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं? हम 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लो. 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर, जो भी रिमाइंडर आया ना उसके बाद उसको फर्दर 5 से डिवाइड कर दो. मतलब जैसे यहाँ रिमाइंडर 2 आ गया,
अगर हम 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5 0 0 रिमाइंडर 2 आएगा, तो इसका आंसर 2 ही हो गया। 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 1 2 रिमाइंडर 0, तो इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ये 100 के लिए भी वैलिड है। अगर मैं अभी लास्ट 2 डिजिट आपको बताऊंगा, विच इज सेम एज सेइंग फाइंडिंग आउट रिमाइंडर व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाय 100। मेकिंग समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? भाई किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें लास्ट 2 डिजिट्स निकालने। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लो, चलो अभी करते हैं, अभी करते हैं। 2 की पावर 1000 डिवाइड बाय 3, अभी देख लेते हैं, उसका आंसर आएगा 1। पर चलो मान लेते हैं मेरे पास 3 4 7 8 डिवाइडेड बाय 100 है। बेसिकली इट इज 3 4 7 8 डिवाइडेड बाय 100, which is last 2 digits. So any number divided by 100 is basically finding out last 2 digits. Now, had it been this question 3 4 7 8 की power 543 divided by 100, once again what are we searching for? We are still searching for the last 2 digits of this number. समझ में आ रहा है? Dividing by 100 is nothing but searching last 2 digit of this number. Now finding our last 2 digit is, yes, can be a tricky kind of thing. Let's just do, how do we handle this? मान लेते हैं यही क्वेश्चन है हमारा 34 3 4 7 8 की पावर 543. Let me just first take easy value. Let's say I have a number like 3 4 7 1 whole की पावर 543. चूंकि आखिरी में 1 है, चूंकि इसका यूनिट्स प्लेस तो 1 ही आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जो इसका सेकेंड लास्ट डिजिट होगा पता है क्या होगा, इसका प्रीसीडिंग डिजिट इज इनटू दिस नंबर 7 3 जा 21, इसका आंसर 11 है। दैट्स इट, बस। बट इट इज ओनली वैलिड इफ द नंबर इज एंडिंग विद 1। समझ में आ रहा है? क्योंकि आखिरी में तो 1 तभी आएगा जब आखिरी में 1 है, नहीं थोड़ी ना आएगा 1। आ रही बात समझ में? अब अगर आखिरी में 1 नहीं है तो क्या अपन 1 ला सकते हैं? ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? देखो, अगर आखिरी में कोई भी ऑड नंबर है, एक बार 5 को छोड़ देते हैं, ऑड में हम 5 को छोड़ देते हैं, मान लेते हैं आखिरी में यही क्वेश्चन होता 3 4 8 3 होल की पावर 543। 1 तो नहीं है, लेकिन हमें पता है 3 की पावर 4 1 ही होता है। समझ में आ रहा है? तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको करेंगे 83 की पावर। ठीक है, हम 83 की पावर 4 करेंगे इसको। 4 इंटू क्या बनेगा 1, 4 4 3 जा 12, 23 4 5 जा 20 इंटू 83 का स्क्वायर, यही बनेगा, है ना? 270 540 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने ऐसे 4 में ही क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है 3 की पावर 4 1 देगा मुझे। अब मुझे इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। 83 की पावर 4 होल की पावर 135। इसका शॉर्टकट पता है लास्ट 2 डिजिट निकालने का? 100 से कितना करीब है? 17। 17 का स्क्वायर होएगा 289, आखिरी 2 डिजिट 11, फिर इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर होना चाहिए, कितना करीब है 11, 11 का स्क्वायर 121, 21 आएगा। तो ये क्वेश्चन बन गया 21 की पावर, अभी मैं समझाता हूं जब नहीं समझ में आ रहा तो ये क्या है। 83 का भी स्क्वायर किया था आपने, क्या आया था 89। समझ में आ रहा है? लास्ट 2 डिजिट हो गया ये, इसका आंसर तो हमें पता ही है।
5 इंटू 2 10, 10 का मतलब 10, तो जी इसका प्रोडक्ट 83, इसका प्रोडक्ट 89। ये सबसे छोटा मेथड है। नहीं, मन में कहा बोल रहा हूं, मैं तो जोर जोर से बोल रहा हूं। ओके, देखो अभी जो तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है वो आई है, यहाँ जो समस्या आई है वो आई है 83 की पावर 4 को निकालने की, है ना? ये स्टेप समझ में नहीं आया ना? अच्छा चलो, मान लेते हैं मैं एक स्क्वेयरिंग टेक्निक सिखाता हूं तुम्हें 100 के आसपास की वैल्यू के, 100 के आसपास की वैल्यू, ठीक है? ये वैदिक मैथ्स का पार्ट है जो फर्स्ट क्लास में होता है ना, थोड़ा सा। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, जो हमारे काम का है। हाँ, उसको बनानी पड़ेगी लग रहा है। मैं एक बार स्क्वायरिंग टेक्निक सिखा देता हूँ 100 के आसपास कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे करना है। मतलब मान लेते हैं हमें 6 का स्क्वायर याद है, कितना होता है? 100 का स्क्वायर याद है 10,000, तो हमें 106 का स्क्वायर भी याद हो जाएगा। ऐड नहीं, इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं आसान है? क्योंकि ये जो तुम कह रहे हो वो तो ये बनेगा ना, इसको 100 + 6 का होल स्क्वायर करेंगे, 10,000 + 36 + 12, ये भी तो जोड़ना पड़ेगा, तो 11236। अब इसका जो मेथड है फिलहाल मैं वो सिखा देता हूं, लेकिन जो हमारे काम की चीज है फिलहाल लास्ट 2 डिजिट्स है। देखो जब भी मैं 100 के आसपास की वैल्यू लेता हूं, क्यों? क्योंकि 100 जो स्टैंडर्ड माना जाता है, मतलब 100 इज अ वेरी स्टैंडर्ड, परसेंटेज में भी हम 100 ही पढ़ते हैं, तो 100 आसान भी होता है इसका स्क्वायर करना, इसलिए हम 100 लेते हैं। तो हम 100 के आसपास का ले रहे हैं, तो हम मान लेते हैं 106 का हमें स्क्वायर करना है। मेरे आंसर के हमेशा 2 पार्ट होंगे, राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट। ये राइट पार्ट है, ये लेफ्ट पार्ट। राइट पार्ट विल ऑलवेज हैव 2 डिजिट्स, राइट पार्ट में हमेशा 2 डिजिट आएगी, याद रहेगा, ना तो ज्यादा आएगी ना कम आएगी, ठीक। अब एक कहानी याद रखो, हमारे देश में जो लोग अमीर हैं, या दुनिया में भी यही हो रहा है, जो लोग अमीर हैं वो और अमीर हो रहे हैं, और जो गरीब है वो, ठीक है, तो जो अमीर है वो अमीर हो रहा है और जो गरीब है वो गरीब है। ये तो समझ में आता है। अब सवाल ये कि क्या आप अमीर हो या क्या आप गरीब हो? Okay, अब दिस अ बिग क्वेश्चन, बिकॉज गरीबी फील होती है किसी BMW वाले को देख के, अमीरी फील होती है साइकिल वाले को देख के, है ना, हायरार्की। तो अमीर या गरीब कैसे समझ में आएगा? कंपैरिजन, कंपैरिजन के लिए हमेशा एक स्टैंडर्ड होना चाहिए भाई। मैं बोलता हूँ भाई मारुति 800 है ना, तो मान लो एवरेज है, उसके ऊपर वाली गाड़ी अमीर, उससे नीचे वाली, मतलब उससे ऊपर अमीर मान लो, उससे नीचे गरीब, फिर तो क्लियर डेफिनेशन है भाई तुम। हाँ, आती आती होगी यार, क्विड क्विड आती है ना। हाँ, एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड है 100। अगर 100 से ज्यादा नंबर है तो कैसा नंबर है? अमीर नंबर है। 100 से कम है तो गरीब नंबर, क्योंकि 100 हमने क्या माना है? स्टैंडर्ड। इतनी बात तो याद रहेगी, जो 100 से ज्यादा है वो अमीर है, जो 100 से कम है वो गरीब है। अब 106 100 से अमीर है गरीब है? कितना अमीर है? 6 का, तो 6 का स्क्वायर लिख दो यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत। अच्छा, 106 अमीर आदमी है ना, कितना अमीर है? 6। अमीर आदमी और अमीर होएगा, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है और ज्यादा आता है, तो 106 में 6 जुड़ जाएगा, कितना होएगा? है 112। यही आंसर है, देखो आपका है। हाँ हाँ, क्योंकि जितना अमीर है उतना अमीर है, बस। मान लेते हैं 108 का स्क्वायर करना है अपन ने, कितना अमीर है? 8। 8 का स्क्वायर 64। अमीर आदमी, काम खत्म हो गया। फिलहाल अपने को ये लास्ट 2 डिजिट का इंपॉर्टेंस है फिलहाल तो, लेकिन स्क्वायरिंग ऐसे होती है। मान लेते हैं 112 हो गया, इसका भी सिखाई देता हूँ, सिखा रहा हूँ, तो कितना अमीर है? 12 का स्क्वायर, यहाँ क्या लिखूं? सिर्फ 44। लास्ट 2 डिजिट तो कंफर्म हो गई है। अमीर आदमी 112 + 12
हो जाएगा। अगर आप 25 तक का स्क्वायर याद कर लो ना तो 925 तक का स्क्वायर कर सकते हैं आप ऐसे ही, कुछ कुछ जुगाड़ बिठा के। अभी बताता हूँ कैसे है, बस फिर हो जाएगा सारा। ये यहां तक समझ में आ रही है एक बात? चलो अब हम यहां तक क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है। अच्छा, अब हमारे देश में गरीबी भी है थोड़ी बहुत, उसको देख लेते हैं। मान लेते हैं हमें 80 या नहीं, ये नहीं लेता क्योंकि तुम गलत करोगे एक बार। 96 का स्क्वायर ले लेते हैं। अब क्या करूं बताओ? यहाँ 2 डिजिट आएगा, सारी कहानी सेम है, राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड, राइट में 2 ही डिजिट आएंगी। उसके बाद पहले बताओ अमीर है गरीब है? कितना? स्क्वायर किसका करेंगे? 4 का। 4 का स्क्वायर, ठीक है। गरीब आदमी और गरीब होता, 4 गरीब है और गरीब कर दो। यूनिट्स प्लेस नहीं जोड़ना, घटाना है। जो 100 से अमीर या गरीब है, गैप देखना, तभी अमीरी गरीबी समझा रहा हूं। समझ में आ रही बात? अच्छा, मान लेते हैं अपने को 87 का स्क्वायर करना है। कितना गरीब है? 13 का स्क्वायर। यहाँ क्या लिखूं? गरीब आदमी गरीब होगा, कैरी जुड़ता है हमेशा, फालतू है ना। आगे आंसर। अपन अगर मान लो मैं कहूं कि यार मुझे ये बताओ 83 का स्क्वायर करना है अपने को, पूरी कहानी नीचे है, बस मुझे आखिरी 2 डिजिट बताना है। क्या करोगे? कितना गरीब है? 17 का स्क्वायर 289। आगे क्यों करना, आंसर आ गया ना। ऊपर मैंने यही तो किया है, देखो। ये वाला, गरीब आदमी गरीब होगा 74, कैरी, कैरी हमेशा, कैरी मतलब एक्स्ट्रा कहीं से आया वो जुड़ेगा, तो 74 + 175। अब आपको बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं करनी है, अपने को क्या करना है, स्टैंडर्ड से गैप देखना है। मान लो आखिरी में, मान लो 98 की पावर 4 करना है अपने को, मान लेते हैं एक बार के लिए, ऐसे ही करो। तो अपन को क्या दिक्कत है, 98 का स्क्वायर करते हैं ना पहले आपा। कितना गरीब है? स्क्वायर किसका करूं? क्या लिखूं यहाँ? 04। तो 98 का स्क्वायर हो गया 04, लेकिन अब इसका भी स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा? देखो 98 का तुमको स्क्वायर किया तो क्या आया? 04 आया। अब इसका स्क्वायर करना है तो इसका मतलब इसका भी स्क्वायर करना है, तो 98 की पावर 4 ये कितना आएगा? हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्यों पंगे ले रहे हैं? आखिरी 2 डिजिट ही तो चाहिए। ठीक है, तो अपन स्टैंडर्ड वैल्यू हमेशा या तो 100 लेंगे या 50 लेंगे या 150 लेंगे या 200 लेंगे या 250 लेंगे, ऐसे 50 के मल्टीपल में ही लेंगे। मान लो मैंने कहा 47 की पावर 4 करना है अपने को, तो इसका मतलब है पहले 47 का स्क्वायर करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड वैल्यू क्या बनेगी? 50। 50 से गरीब है अमीर है? कितना? स्क्वायर किसका करें? आंसर क्या आएगा? 09। तो 47 का स्क्वायर की वैल्यू आ गई 09। चूंकि इसका इसका मतलब इसका भी स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। 81 आंसर आ गया, 47 की पावर 4 81 आ गया, बिना, मैं यही कर रहा था ऊपर। ठीक है, आ जाएगा समझ में? चलो, मैंने ये किया था, देखो इसको ऐसे किया। 4 से क्यों किया मैंने? क्योंकि 1 चाहिए मेरे को। 4 से पावर 4 क्यों करता हूं मैं हमेशा? 1 चाहिए मुझे, 1 मिलता ही शॉर्टकट है, 1 मिनट का काम है। तो 1 करने के लिए 83 का स्क्वायर करना है। 83 का स्क्वायर का क्या मतलब है? कितना गरीब है? यहां देखो 83 का स्क्वायर, 83 का स्क्वायर कितना गरीब है? 17। 17 का स्क्वायर 289। आंसर 89 ही आएगा, किस्मत ठीक है तुम्हारी। ठीक है, अब इसका इसका भी स्क्वायर करना है। ठीक है,
तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, क्या बनेगा 21 आएगा। तो ये देखो 83 की पावर 4 है, 80, इसको मैं अपने क्या लिख दिया 21। 21 की पावर 135 तो चुटकी का खेल है, 1 का 1 लिखना है और 5 2 इंटू 5 करना है, ये तो हो गया। अब 83 की पावर 3 सॉल्व करना है अपन ने, तो 83 को 83 लिख दिया, 83 का स्क्वायर 89 आएगा। समझ में आ रहा है 83 का स्क्वायर कैसे पता, अभी ये तो किया तो था यहाँ पर। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर होगा वो इस पूरे इसका आंसर आ जाएगा। अब 83 इंटू 89 का कोई जुगाड़ नहीं है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक लाइन में। इसको मैंने 4 से डिवाइड किया 543 को, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। ठीक, तो 83 की पावर 543 को मैंने लिखा 83 की पावर 4 इंटू 135 प्लस 3। इसको मैंने ऐसे लिखा 83 की पावर 4 ऐसे ब्रैकेट कर किया 130 में, लिख सकते हैं ना मल्टीप्लीकेशन को, प्लस का है इसलिए मैंने 83 का क्यूब कर दिया। इसको मैंने अलग से सॉल्व किया, इसका आंसर आएगा 21। इसका ये शॉर्टकट समझ में आया, ये है 135 ये, और यहाँ पे 83 अलग लिख दिया और 83 का स्क्वायर अलग दिया। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे इसका शॉर्टकट पता है बस। तो इसका शॉर्टकट में 89, ये 83, इसका भी मुझे शॉर्टकट पता है, आखिरी में 1, 5 2 जा 10, सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। अब किसी भी नंबर जो ऑड नंबर है ना वो ऐसे हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, मान लो या तो आखिरी में 1 होगा फिर तो शॉर्टकट है ही है, आखिरी में 3 होगा तो पावर 4 करके 1 बना लेंगे, और अगर आखिरी में 7 होगा तो भी पावर 4 करके 1 बन जाएगा, क्योंकि 7 की पावर 4 1 होता है, और 9 होगा तो भी 1 बन जाएगा, 2 वाला नहीं। हाँ 9 की पावर, समझ में आ रहा है, यानी अगर आखिरी में 1 है फिर तो कोई सवाल ही नहीं है, सेकंड भी नहीं लगेगा, लेकिन अगर आखिरी में ऑड नंबर है तो पावर 4 करके 1 बना लो, उसके बाद सॉल्व हो गया। ठीक है, पंगा तब होगा जब आखिरी में इवन नंबर आएगा, जैसे कि मान ले 3 4 मान लेते हैं 3 4 1 4 मान लेते हैं, या 9 4 मान लेते हैं। ठीक है, इसको करना है। तो मेरा क्वेश्चन बचा 94 की पावर 4325, इसमें अपन 2 कॉमन निकालेंगे तो कितना बनेगा, 2 इंटू 2 4 जा 8 7, ये बनेगा। इसको अपन ऐसे कर सकते हैं 2 की पावर 4325 इंटू 47 की पावर 4325 कर सकते हैं। 47 पहले इसको अलग से सॉल्व करते हैं। अब इसको क्या करेंगे, 47 को पावर पहले 4 बनाएंगे, 4 1 जा 4, 0 जा 8 जा 1 जा इंटू 47 की पावर, यही बचेगा। इसका शॉर्टकट पता है हमें, 47 की पावर 4 कितना करीब है, 3 का स्क्वायर 09, फिर इसका स्क्वायर कितना बने 81। अब 47 की पावर 4 करके देख लो कैलकुलेटर में, आखिरी में 81 आना चाहिए। समझ में आ रहा है ये शॉर्टकट। तो अब मेरा क्वेश्चन में 81 की पावर, और जैसे ही आखिरी में 1 आ गया मजा आ जाएगा, क्योंकि 1 का 1 आएगा और ये 8 इससे मल्टीप्लाई, 8 1 जा 8, तो इसका आंसर आ गया 81 ही आ गया इंटू 47। ये करना पड़ेगा अपने को 81 इंटू 47, तो 7 1 जा 7, ये इसमें 7 56 प्लस 4 60, तो 07, इसका आंसर कितना आएगा 07। ठीक है, ये तो हो गया ये वाला पोर्शन जो भी पहले किया था। किसी भी इवन नंबर में से अगर हम 2 को बाहर निकाल दें तो अपने आप ऑड तो बन ही जाएगा कभी ना कभी। समझ में आ रहा है,
अब अगर हमें 2 की पावर की साइक्लिसिटी पता लग जाए तो हमारा काम चल जाएगा। अब मैं 2 की साइक्लिसिटी समझाता हूं आपको, ठीक है। अब आप सोचो कि ये इतना बड़ा है, आप किताब में एक क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन एग्जाम्पल्स है, देखो जरा। पेज नंबर 28 पे क्वेश्चन नंबर 08, 2.08। मैं चाहता हूं उसको करो एक बार आप, जो मैंने मेथड बताया, फिर मैं 2 वाला बताऊंगा आपको। 2.08। हाँ जी, ऑनलाइन भावना, बंटी, ज्योति, मनिका, मान्या, पीयूष, रुचि, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो भी 2 लोगों ने यस बोला है बस। यस सर। चलो वेरी गुड, ठीक है। तो बुक है ना, सब लोग सॉल्व करो एक बार ये वाला क्वेश्चन। हाँ, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। 817 होल की पावर, हाँ करो ना इसको एक बार, अभी उसकी ये कर लो तो फिर वो बताता हूँ ना अभी इवन वाला। अभी इसकी एक्सप्लेनेशन देखो कितनी लंबी है, पहले आप अपने हिसाब से हैं। 2 बाहर निकाल के ऑड अलग करना पड़ेगा, ऑड वाला मेथड पता है। अब इवन का मैं बताऊंगा कि इवन में क्या आंसर आएगा, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करना, और कोई इलाज नहीं है अपने पास। क्लास में हूँ, बट बच्चे क्वेश्चन कहते हैं बताओ क्या आंसर। नहीं, अक्षित कौन? अच्छा, हाँ तो मेरा आईडी देना है। कहाँ पे जाना है? अच्छा ठीक है। आ गया। पूरा एग्जैक्ट आंसर मेंशन भी नहीं किया कहीं तो।
अरे 37 दे रखे भाई, 37 दे तो रखे। तीसरा पैराग्राफ दूसरा पैराग्राफ पढ़ तो दैट इज 37 इज आंसर। उसके बाद पूरी एक्सप्लेनेशन दे रखी है कैसे। समझ में आ रहा है? इसीलिए जो मैंने बताया ना सबसे अच्छा तरीका है। क्यों? समझ ये ऑड नंबर है तो पहले 1 बनाना है यहाँ पे, तो इसका मतलब है बेसिकली मेरा क्वेश्चन 17 की पावर 4 कर लेते हैं। 4 1 जा 4 27, 4 6 जा 24 33, 4 8 जा 32 1। 673 को 4 से डिवाइड करना है अपन ने। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 8 जा 32, 4 into 168 प्लस। ठीक है, तो अब 17 का स्क्वायर याद होना चाहिए, 17 की पावर 4, तो इसको हम कह सकते हैं 17 का स्क्वायर इज 289, 89 आ जाएगा। इसका स्क्वायर करने का मतलब है इसका स्क्वायर करना, तो यानी 17 की पावर 4, 89 का स्क्वायर, 89 100 से 11 का मैथ 21 हो जाएगा, हमारा काम चल जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन बच गया 21 की पावर 168 इंटू 17। जब भी आखिरी में 1 आएगा तो मैंने क्या कहा था शॉर्टकट में, 1 का तो 1 ही रहेगा, 16 तो 16 ले लेंगे, ठीक है, इंटू 17। ये करना पड़ेगा, कितना है 21। 21 कैसे आया? 17 की पावर 4 निकालना है अपने, तो ये 17 की पावर 4 सॉल्व करना था अपने को। यूनिट्स प्लेस 1 चाहिए अपने को, 1 बनाते ये वाले मजे नहीं आएंगे, 1 लिख के इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो 1 बनाने के लिए पावर 4 करना पड़ेगा। 3 की पावर 4 भी 1 होता है, 7 की पावर 4 भी 1 होता है, 9 की पावर 4 भी कर लो तो भी 1 ही होता है। अगर 1 आ गया तो चक्कर ही नहीं है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अब हमें 17 की पावर 4 निकालना है। 17 स्क्वायर याद होना चाहिए 289 होता है। हमें आखिरी 2 डिजिट में इंटरेस्टेड है इसलिए इसको भूल जाते हैं। तो 17 स्क्वायर की आखिरी 2 डिजिट 89 है, लेकिन हमें 17 की पावर 4 चाहिए, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करना है, यानी 17 की पावर 4 का जो आंसर है वो 89 का स्क्वायर होना है। अभी अभी मैंने सिखाया था 100 से कितना करीब है, स्क्वायर किसका करेंगे 11, 121। फिर गरीब आदमी गरीब होता है 78, कैरी 1 79, बट एक करने की जरूरत नहीं है, 21 ही तो चाहिए अपने को, आखिरी 2 चाहिए, तो पहले में ही आ गया, इसका आंसर आ गया 21। तो मैंने 7 की पावर 4 यानी इस पूरे की जगह मैंने 21 लिख दिया बस। ये तो पता ही है 1 का 1 12 और मल्टीप्लाई करा तो इसका आंसर आ गया 37। क्वेश्चन खत्म हो गया, इसीलिए मैंने ऐसे कराया ताकि आप ऐसे कर सको। ठीक, अब बचा इवन नंबर। अगर नंबर इवन है तो उसमें जितने भी 2 के मल्टीपल है बाहर निकाल दोगे तो बचेगा तो ऑड, ऑड बचेगा तो ऐसे सॉल्व कर ही लोगे, है ना। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 47 की पावर ये, इसका तो जुगाड़ आपने कर लिया, इसका जुगाड़ आ गया 07। अब हमें इसका करना है, किसका करना है 2 की पावर 4325, यानी 2 की पावर 43। आखिरी 2 डिजिट चाहिए, ध्यान रखना, वी आर इंटरेस्टेड इन लास्ट। 2 की पावर 1 कितना होता है 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की 512, हाँ ठीक है।
क्या समझे? चौबीस छिहत्तर 24 इसका मतलब है 2 की पावर 10 गुना में ऑड नंबर करोगे, 10 गुना में 3, 2 की पावर 10 गुना में 5, 2 की पावर 10 गुना में ऑड नंबर, आंसर हमेशा क्या आएगा? 24। ठीक है। 2 की पावर 10 गुना में 2 की पावर 10 गुना में 4, 2 की पावर 10 गुना में 6, 2 की पावर 10 गुना में इवन नंबर करोगे तो क्या आएगा आंसर? ये याद रखना है आपने बस। ठीक है। अब हमें चाहिए था, कौन सा क्वेश्चन क्या था अपना? ये। ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 10 गुना में 432 इंटू 2 की पावर, मतलब यूनिट्स प्लेस अलग कर दो, बस कहने का मतलब ये है, हो जाएगा। ये क्या है? 2 की, इसका आंसर क्या आएगा? 2 की पावर 10 गुना में इवन, इसका आंसर कितना आएगा? 76। तो 76 गुना में 32, 76 गुना में 32। अब 76 इंटू 32 कर लो, देखो कितना होता है। 12 कैरी 1, 14 प्लस 18 प्लस 1, 12 और 1 13, 32 आएगा। लास्ट 2 डिजिट यही आ रहा होगा। 76 इंटू 32 इज 32। इसका मतलब है मेरा आंसर यहाँ आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ गया? 32। 32 गुना में 7, जो भी आंसर होगा। 32 गुना में 7, 7 2 जा 14 कैरी 1 24। इसका आंसर 24 है। बस ये याद रखना है आपने। ये एक क्वेश्चन है। हाँ, रिकॉर्डिंग। जाना है? हाँ ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात? 2 3 4 कुछ भी आ सकते हैं, 2 3 क्वेश्चन तो आते ही हैं। ठीक है। अब एक बच गया, अगर आखिरी में 5 आ जाए तो क्या करोगे? ऑड नंबर आ जाए तो पावर 4 करके 1 बना लो, 1 आ गया तो शॉर्टकट है ही, 1 आ जाए तो शॉर्टकट है ही। ऑड नंबर आ जाए तो पावर 4 करके ऑड 1 बना लोगे, फिर शॉर्टकट लगा लेना। इवन नंबर है तो 2 को अलग करो, ऑड नंबर अलग करो, ऑड को सॉल्व करो, बात बन जाएगी। सिर्फ प्रॉब्लम आएगी अगर आखिरी में 5 आ गया तो क्या होगा। ठीक है, मैं आपको बस बता देता हूं। अगर आखिरी में 5 आ गया तो मान लेते हैं कोई भी है, 3 4 7 8 5 मान लेते हैं। ठीक है, अगर आखिरी में 5 आए ना, या तो आंसर 25 होगा या तो आंसर 75 होगा। ठीक है। हाँ, मान लेते हैं 35 का क्यूब है, 35 इंटू 35 इंटू 35, 35 इंटू 35 तो हमें पता ही है कितना बनता है, 25 इंटू 30, 2 बनेगा ना। तो ये क्या है, 5 दूनी 10, 15 25 और 2 27। अगर प्रीसीडिंग डिजिट ऑड है
यहाँ तो इवन है ना, और अगर ओवरऑल नंबर भी ऑड है, पावर भी ऑड है, तो ही आंसर 75 आएगा, नहीं तो 25 आएगा आंसर, खत्म बात। अगर मान लेते हैं ये ऑड नंबर है, कोई नहीं, वो रिकॉर्ड आज किसने मंगवाया हुआ है भेज दूंगा। मान लेते हैं ऑड है और पावर 5 है, कितना भी बड़ा नंबर हो, और ओवरऑल पावर भी ऑड नंबर हो, समझ में आ रहा है? जैसे ऑड नंबर कब होगा? जब यूनिट्स प्लेस ऑड होगा, तो ही आंसर 75 आएगा। सारा नहीं, बस इमीडिएटली पहले वाला। 5 से इमीडिएटली पहले ऑड हो और पावर भी ऑड नंबर हो, तो आंसर 75 आएगा, नहीं तो 25 आएगा, काम खत्म है। इस तरीके से आप कोई भी नंबर ले लोगे, सब नंबर का लास्ट डिजिट निकाल पाओगे। ठीक है। जैसे कि तुमने अभी ये क्वेश्चन निकाला, लास्ट 2 डिजिट ऑफ 87 की पावर 673 ना, 6 डिवाइड बाय 100, रिमाइंडर निकालने का भी यही मतलब था। इसका आंसर आया था 37। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन होता 817 की पावर 673 डिवाइड बाय 50, तो क्या रिमाइंडर होता? जो मैंने 10 के लिए मेथड बताया था, वही मेथड इसके लिए भी लागू है। इसको 50 से डिवाइड करना है अपन ने, तो 37 डिवाइडेड बाय 50, रिमाइंडर कितना आएगा? 37। तो इसका आंसर भी 37 होगा। अगर क्वेश्चन ये होता 817 की पावर 673 डिवाइड बाय 25, तो आंसर क्या आता? तो 37 को 25 से डिवाइड कर देते तो कितना बचता? 12। इसका आंसर आएगा 12। अगर यही क्वेश्चन होता 817 की पावर 673 डिवाइडेड बाय 20, तो रिमाइंडर क्या आता? 37 डिवाइडेड बाय 20, रिमाइंडर आता 17। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन आता 817 की पावर 673 डिवाइडेड बाय 10, तो रिमाइंडर क्या आता? 7, विच इज सेम एज फाइंडिंग आउट यूनिट्स प्लेस ऑफ दिस नंबर। सिर्फ इन्हीं से मैं क्यों पूछ रहा हूं आपको? मैं सिर्फ, मेरा क्वेश्चन सिर्फ 50, 25, 20, 10 को लेके क्यों हो रहा है? क्योंकि ये 100 के फैक्टर्स हैं। पिछले मैंने 5 और 2 का पूछा था, क्यों? क्योंकि वो 10 के फैक्टर थे। ये सवाल का जवाब हम इसीलिए निकाल पा रहे हैं क्योंकि 25 फैक्टर है 100 का, 20 फैक्टर है 100 का, 500 का फैक्टर है 10। उन्हीं के आंसर निकाल सकते हो, और कुछ नहीं निकाल सकते। और कुछ निकालने के लिए भी कुछ चैप्टर शुरू करूंगा। समझ में आ रहा है? तो अगर हम 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल सकते हैं, तो 100 का कोई भी फैक्टर ले लो, उससे जब डिवाइड करोगे जो एग्जिस्टिंग रिमाइंडर, तो उसका रिमाइंडर दे देगा आपको। ठीक है, so this will take care of your finding out last 2 digits. ठीक, okay, then we come down to finding out remainders of various numbers. उसने एक नंबर बोला था 2 की पावर 1000 डिवाइडेड बाय 3, और कहा था रिमाइंडर निकालना है ऐसा। ठीक है, अब हर क्वेश्चन, रिमाइंडर वाले क्वेश्चन का कोई फिक्स मेथड नहीं है कि किस मेथड से निकलेगा। हम 4-5 मेथड कर रहे हैं, उसमें से कोई भी एक लगाना पड़ सकता है। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा? वो प्रैक्टिस से ही पता चलेगा, और कोई तरीका है नहीं। हालांकि जो पैटर्न मेथड है, हाँ वो भी एक है, रिमाइंडर थ्योरम भी है, फैक्टर थ्योरम भी है, ठीक है, फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम भी है। अभी ये भी सब आज ही होएगा। लेकिन जो शॉर्ट मेथड है वो है पैटर्न मेथड, लेकिन वो रिस्की बहुत और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। क्या है वो पैटर्न मेथड? वो ये है, जो साइक्लिसिटी ढूंढने का मेथड है वो ये। जैसे कि 2 की पावर 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2 ही आएगा। 2 का स्क्वायर को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। 2 की पावर 3 को 3 से करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2।
2 की पावर 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। इसका मतलब है साइक्लिसिटी 2 1 2 1 है, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 1 करते तो भी 1 आएगा, 2 की पावर 2 इंटू 2 करेंगे तो भी 1 आएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 करेंगे तो भी 1 आएगा, 2 की पावर 2 इंटू कुछ भी करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो इसका मतलब है 2 की पावर 2 इंटू 500 करेंगे तो भी रिमाइंडर 1 ही आएगा। तो इसका मतलब रिमाइंडर 1 है। ये पैटर्न मेथड है। एक और ले लेते हैं, मान लेते हैं यही है 2 की पावर 1000 डिवाइडेड बाय 5 है, मान लेते हैं। पैटर्न मेथड 2 की पावर 1 डिवाइड बाय 5 2 आएगा रिमाइंडर, 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 4 आएगा, 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा 8 डिवाइड 3 आएगा, 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 6 1 आएगा, 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 2 आएगा, यानी 2 4 3 1। साइक्लिसिटी किसकी है 4 की साइक्लिसिटी। इसका मतलब है जब मैं 2 की पावर 4 डिवाइड बाय 5 करता हूं तो भी रिमाइंडर 1 आता है, 2 की पावर 4 इंटू 2 करता हूं डिवाइड बाय 5 तो भी 1 आएगा, 2 की पावर 4 इंटू 3 करूंगा तो भी 1 आएगा, यानी कि 2 की पावर 4 इंटू कुछ भी करूं 250 कर दूं तो भी आंसर 1 ही आएगा। तो इसका रिमाइंडर भी, अगर ये क्वेश्चन होता तो भी इसका इंसिडेंटली इसका रिमाइंडर भी 1 ही आ रहा है। ठीक है, इसको पैटर्न मेथड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन 2-3 मेथड और पढ़ाने से पहले मैं एक बार रिमाइंडर का और आपको और अच्छे से मतलब समझा दूं। पिछली बार मैंने सिखाया था रिमाइंडर का, पॉजिटिव रिमाइंडर नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा, फालतू या कम। तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, मान लेते हैं मैंने कहा 7 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 की पावर 6, रिमाइंडर बताओ क्या बनेगा इसका रिमाइंडर है +1 कैसे? बिल्कुल okay, let me ask you this question. $35 डिवाइड बाय 20 क्या होगा आंसर? 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, रिमाइंडर क्या है? अच्छा, तो यहाँ काटने में दर्द है, इसको काटने में कोई दर्द नहीं है इसमें तो कह रहा है सर ले तो इसमें भी सेम सेम कर लेते हैं भाई, तेरे को क्या दर्द है इसमें? एक मिनट, 5 ये 7 है, सॉरी 5 इंटू 7 कर लेते हैं, 5 इंटू 4 कर लेते हैं, यही बात है। सेम सेम ही तो कट रहा है, कटने का मतलब ही सेम है तभी तो कटेगा। तो 7 को 8 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 3 आ गया, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो 3 गलत है, तो फिर इसका मतलब ये इसका मतलब ये भी गलत है ना, इसका मतलब आंसर ये नहीं है, आंसर ये है। जिस लॉजिक से ये गलत है उस लॉजिक से ये भी गलत है, यानी कि 7 गुणा में 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 की पावर 6, कैंसिल कर दो कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ गया 1। लेकिन जो कैंसिल किया मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्चुअली रिमाइंडर ये है 35 को 20 से डिवाइड करना इज नॉट सेम एज 7 को 4 से डिवाइड करना, कि भैया ये तो सर 5 5 तो काट तो दिया हमने। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जो डिवाइड करना था वो 20 से करना था। समझ में आ रही बात? इसका मतलब ये है कि अगर हमें किसी बड़े नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करना है तो हम काट सकते हैं, उसमें कोई दर्द नहीं है, लेकिन वो आंसर नहीं होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब सही आंसर आएगा। एक बात तो ये समझ में आनी चाहिए, आ रही बात समझ में? दूसरी बात,
मान लेते हैं मैंने कहा कि 1 2 3 1 इंटू 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 6 डिवाइडेड बाई 12, रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर निकाल सकते हैं, एक तरीका तो यही है। क्या मैं ऐसे कर सकता हूं कि इसको अलग से डिवाइड करूं, इसका रिमाइंडर? एक बार ही कर सकते हैं, एक ही बार कर सकते हैं, प्लस 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 में नहीं है सर, मल्टीप्लाई में। हाँ, ऐसा हो सकता है क्या? एक ही बार करते हैं, एक ही बार करते मान लो एक बार कर दिया तो 12 एकम 12, 0 24, कितना बचेगा? 6 7, यहाँ पे 7 आ गया रिमाइंडर, यहाँ पे 9 आ जाएगा रिमाइंडर, और यहाँ पे 11 आ जाएगा रिमाइंडर। 3 ही तो फालतू है। अच्छा, 10 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, रुक जा, गलत हो गया, इसको 35 कर लेते हैं। ठीक है, नहीं अब एक इसका मतलब ये है कि किसी नंबर को गुणा करके किसी नंबर से डिवाइड करने की बजाय उन नंबरों को इंडिपेंडेंटली डिवाइड करके उनके रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई कर दो तो भी करेक्ट आंसर आएगा। नहीं आएगा, देखो इसका रिमाइंडर 7 है, इसका 10 है। हाँ, अब ऑब्वियसली किसी नंबर को 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा नहीं, इसको फर्दर 12 से डिवाइड कर दो। हाँ, इतनी भी मेहनत नहीं करनी है अपने को। कैसे करना है? 10 फालतू है ना, यानी 2 की कमी है। 11 फालतू यानी 1 की कमी है। तो रिमाइंडर कितना हो गया? 14 बटे 12 2। ये ज्यादा आसान है ना। -2 इंटू -1 +2। भाई भाई 10 फालतू यानी 2 की कमी, नेगेटिव रिमाइंडर भी तो हो सकता है। और 11 फालतू यानी 1 की कमी, -1। तो इसका रिमाइंडर 7, इसका -2, इसका -1, तो -2 इंटू -1 इज +2, +2 इंटू साइन इज 14। 14 रिमाइंडर आना चाहिए, तो आंसर आ गया 2। कई जगह तोड़ मरोड़ सकते हैं रिमाइंडर्स में। तो एक चीज तो ये हो गई कि जब डिवाइड करेंगे कैंसिल कर सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई बैक करना पड़ेगा। दूसरा, किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो आप इंडिपेंडेंट पूरा मल्टीप्लाई ऑब्वियसली नहीं होगा, इंडिपेंडेंटली रिमाइंडर्स निकाल के। अब मान लो इस क्वेश्चन में प्लस होता तो भी आप ये कर सकते थे, 7 -2 -1 डिवाइडेड बाय 12, तो आंसर क्या आ जाता? 4। तो आंसर इसका 4 हो जाता। यहाँ पे माइनस भी हो सकता था, मतलब दिस प्लस दिस माइनस कुछ भी हो सकता था। ठीक, ये कैट कैट का क्वेश्चन है एक्चुअल, 1231 वाला है। कहाँ कॉम्प्लिकेटेड है? देख, कुछ नहीं करना क्या है, ये अगर पता है आपको कि पहले रिमाइंडर निकाल के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आम आदमी का तो तुम आम थोड़ी ना हो। हाँ, तो आप आम नहीं हो ना, फिर खास हो तभी तो। हाँ, तो ये तो फर्क है ही है, तो फिर कुछ तो पता ही होना चाहिए। अब ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, निकाल नहीं सकते एग्जाम में, लेकिन ये पता होगा तो जल्दी हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन तो क्या ही लोगे ये तो। क्या दूं, ले लो, कुछ भी लिख लो। क्या लिखूं बताओ? डिवाइड करना है? हम्म, इसका कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस? ये जो लिटिल थ्योरम है ना, कई बार वो ज्यादा यूज होती है, फर्मैट्स लिटिल थ्योरम। इसमें एक बचेगा। इसमें
अब इसी मेथड से ये कर लो, इसी मेथड से ये क्या है, ये है 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में कितना है 1000 तक है, डिवाइड बाय 3 करना है। इसका रिमाइंडर क्या है -1। 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो या तो रिमाइंडर 2 आएगा, यानी सबका रिमाइंडर -1 आएगा। कितनी बार तक आएगा 1000 आएगा, तो 1 आ गया आंसर। हाँ मुझे पता है, कोई नहीं। ये इसका मतलब है ऐसे सिर्फ एक का रिमाइंडर निकाल लो और उसकी पावर कर दो तो आंसर आ जाना चाहिए। मान लेते हैं यही होता है, इसको थोड़ा और चेंज कर लेते हैं। 2 की पावर 1000 डिवाइडेड बाई 7। अब क्या कर सकते हो, -5 की पावर 1000 करने से तो आसान ये नहीं है, रेखा 2 की पावर 1000। फिर इसको ब्रेक कर, टू की पावर 3 इंटू 3 कर लेते हैं इंटू 2, ठीक है। तो ये बनेगा 2 की पावर 8 की पावर 3 इंटू 2/7, ठीक। इसका रिमाइंडर क्या बनेगा 1, तो 1 की पावर 3 तो 1 ही बनेगा, इंटू 2 तो करना ही है, तो 1 इंटू 2। यही वाला मेथड है। इसी चीज को हम रिमाइंडर थ्योरम से भी करते हैं। वो क्या होता है वो समझा देता हूँ एक बार। ये समझ में आया क्या कैसे किया मैंने, क्यों ऐसा ही क्यों किया। हम बेसिकली कोशिश करते हैं रिमाइंडर या तो +1 आ जाए या -1 आ जाए। क्यों, जब रिमाइंडर +1 आ जाए या -1 आ जाए, उसकी पावर कुछ भी करोगे आराम से आंसर आ जाएगा, तभी करना चाहिए। अदरवाइज फिर कुछ और ही मेथड लगाना चाहिए। मान लो +1 -1 लाने में सक्षम नहीं है ना, फिर और जुगाड़ कर करके कोशिश करनी है 1 लाने की, ठीक है। नहीं तो पैटर्न मेथड तो है ही, करते रहो, जहां साइक्लिसिटी आएगी उसको पकड़ के सॉल्व कर दो, बचे हुए को अलग सॉल्व कर दो। इसी चीज को हम रिमाइंडर थ्योरम से कैसे सॉल्व करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम पर आता हूँ वो क्या होता है। तुमने एक तो पैटर्न मेथड देख लिया, ठीक है। अब रिमाइंडर मेथड देते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, रिमाइंडर थ्योरम बोलता है अगर हमारे पास कोई फंक्शन f ऑफ x है, इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, रिमाइंडर इज ऑब्टेन्ड एज f ऑफ a। ये रिमाइंडर थ्योरम है। अच्छा पहले एक बात समझो, मान लेते हैं f ऑफ x की वैल्यू है 2x² + 3x + 4। मान लेते हैं ऐसा कुछ f ऑफ x है। f ऑफ 2 का क्या मतलब है, x की वैल्यू 2 पुट करनी है, जो भी आंसर आएगा वो f ऑफ 2 कहलाएगा। f ऑफ -3 का क्या मतलब है, 2 की जगह x की जगह आपको -3 पुट करना है। f ऑफ डोंकी क्या होएगा, x की जगह आपको डोंकी पुट करना है। That's all. समझ में आ रही बात। ये f ऑफ x का मतलब होता है और ये f ऑफ a का मतलब होता है। इसके अंदर a डालना, x की जगह a डालना। अब ये कह रहा है कि मान लेते हैं मुझे यही इक्वेशन है, f ऑफ x जो इक्वेशन है 2x² + 3x + 4। मान लो मुझे इसको x - 2 से डिवाइड करना है, x में, तो रिमाइंडर निकालना है। एक तरीका तो ये होता है कि अपन 2x² + 3x + 4 को डिवाइड करें, ठीक है। डिवाइड करने का तरीका ये होता है, इसको इस नंबर ऐसे नंबर से गुणा करना है ताकि पहले वाला टर्म आ जाए। तो क्या करें 2x, तो 2x × x इज 2x, ठीक है। ये अब ये -2 × ये -4x, ये माइनस होएगा तो ये प्लस होएगा, ये कट जाएगा, ये 7x + 4। अब यहाँ क्या लिखूं ताकि ये फर्स्ट टर्म आ जाए, +7, तो x × 7 इज 7x, -2 × 7 इज -14। अब यहाँ माइनस करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, रिमाइंडर आ गया +18। ये तरीका डिवाइड करने का। रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि ये मेरा f ऑफ x है, उसको किससे डिवाइड करना है, x - a से। तो यहाँ पे x - a की क्या वैल्यू लिखनी पड़ेगी 2। तो रिमाइंडर क्या बनेगा f ऑफ a, यानी रिमाइंडर क्या बनेगा f ऑफ 2, यानी x की जगह अपन ने 2 पुट करना है, 2 × 2 का स्क्वायर
प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4, तो ये बन जाएगा 4 2 जा 8 प्लस 6 प्लस 4 18। ये आपका ये रिमाइंडर थ्योरम है। अगर कोई फंक्शन f ऑफ x है जिसको हमें x बाई a से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर कैन बी ऑब्टेन्ड एज टेकिंग f ऑफ a। मान लेते हैं इसको x प्लस 2 से करना होता, 2x स्क्वायर प्लस, हमें चाहिए x माइनस ए, समझ में आ रहा है, हमें क्या चाहिए x माइनस ए। तो इसको x माइनस ए की फॉर्मेट कैसे करोगे, x माइनस ऑफ माइनस 2, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस a की वैल्यू बनेगी -2, समझ में आ रहा है। और हमें क्या निकालना है, f ऑफ a इस विच इज f ऑफ -2 विच इज 2 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 4, 4 2 जा 8 -6 प्लस 4। ठीक है, नो प्रॉब्लम्स। ये रिमाइंडर थ्योरम। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं रिमाइंडर थ्योरम से, 2 की पावर 1000 डिवाइडेड बाय 7, 2 की पावर 1000। अब डिनोमिनेटर को हमें x माइनस ए की फॉर्मेट लिखनी है, और ऊपर मुझे x की टर्म्स में कुछ कुछ चाहिए, क्योंकि फंक्शन चाहिए f ऑफ x में। तो 7 और 2 को क्या कनेक्शन हो सकता है, 7 और 2 में क्या कनेक्शन हो सकता है, 2 को 2 क्यूब -1 को 7 लिख सकते हैं। अब ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 2 क्यूब को x मान लूं, 2 क्यूब को x मान लूं, तो 2 की पावर 1000 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 333। तो ये 2 इंटू ये बन जाएगा x की पावर 333। तो मैं 2 की पावर 1000 को क्या मान रहा हूं, ये, और एजम्पशन क्या है ये। तो न्यूमरेटर मेरा क्या बन जाएगा, 2 की पावर x की पावर 333 डिवाइडेड बाय 7 क्या बन जाएगा, ये, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1, यही बात है ना। तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 1। तो ये मेरा फंक्शन हो गया f ऑफ x, और ये वाला मेरा हो गया x माइनस ए। तो रिमाइंडर क्या है, f ऑफ a। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1, f ऑफ 1 रिमाइंडर है, 2 इंटू 1 की पावर 333। तो रिमाइंडर क्या आ गया, 2 इंटू 1 विच इज 2, जो कि आप लोगों ने ऊपर अलग अलग मेथड से निकाला हुआ है। इसको रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, बोलिए, यहां तक समझ में आ रही बात, रिमाइंडर थ्योरम। इसके बाद आता है फर्मैट्स लिटिल थ्योरम। ये इंपॉर्टेंट है। आधा घंटा तो बचा, क्या ब्रेक, चलो 5 मिनट का ब्रेक ले लो भाई, 5 मिनट। मैं एक बार इसको पॉज कर रहा हूँ, मुझे याद दिला देना, वापस से रिकॉर्ड करना है। Okay, so we'll start with Fermat's little theorem. This is used when we have to divide some number by a prime number. Any number of the form a की power p minus 1 is divisible by p if p is prime and a and p are co-prime. मतलब कोई कॉमन फैक्टर ना हो इसमें। मान लेते हैं नीचे 13 है, ऊपर मान लेते हैं कोई भी नंबर हो जो 13 का मल्टीपल ना हो, कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं क्या लिखना है, मान लो 2, 2 की पावर 12 माइनस 1 हमेशा 13 से डिवाइड होगा, इसका ही मतलब है। मान लो नीचे 13 है, ऊपर कुछ भी ले लो, 9 की पावर 12 माइनस 1 13 से डिवाइड होगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ ये पूछूं कि 2 की पावर 12 डिवाइडेड बाय 13, रिमाइंडर क्या होगा, आंसर कैसे बताओगे। 2 की पावर 12 minus 1 is divisible by 13. That is the formula. This is Fermat's little theorem. So a की power p minus 1 is divisible by p if p is prime and a and p are co-prime.
तो अगर मैं पूछूं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि 2 की पावर 12 माइनस 1, ये मान लेते हैं a है, ये p माइनस 1 की बराबर हो जाएगा, ये p हो जाएगा, तो डिविजिबल हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यस, इसको ऐसे करेंगे -1 + 1, ठीक है। तो 2 की पावर 12 -1/13 + 1/13, अलग अलग रिमाइंडर निकाल के ऐड कर दें। भाई ऐड करके रिमाइंडर निकालना है तो अलग अलग निकालते हैं। इसका रिमाइंडर 0 है और इसका रिमाइंडर 1 है, तो आंसर आ गया 1। आ रही बात समझ में? ये रिजल्ट याद रखना है आपको फॉर्मेट थ्योरम का। जैसे कि एक एग्जांपल है, बोल रहा है कि 26 की पावर 57 डिवाइडेड बाय 29, ठीक है। अब हमें क्या समझना है? हमें ये समझना है कि डिनोमिनेटर प्राइम है, ये तो कंफर्म है। 26 और 29 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फॉर्मेट्स लगेगा। लेकिन यहाँ पे 28 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और है, क्योंकि 29 है तो ऊपर क्या होना चाहिए? 28 होना चाहिए। हाँ सॉरी, 58 होना, मतलब 28 होना चाहिए, 28 होना चाहिए ना यहाँ पे p-1 करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, ये 28 का मल्टीपल होगा, हमें तो 28 चाहिए बेसिकली। तो अपन 57 को ऐसे लिख सकते हैं, 28 इंटू 2 + 1 लिख दूं। ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं बताता हूं अभी आपको, क्योंकि मेरे को 28 चाहिए इसलिए लिख रहा हूं। तो 26 की पावर 28 इंटू 2 + 1, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं 26 की पावर 20, या ऐसे लिख लूं 26 की पावर 2 की पावर 28 इंटू 26 की पावर 1, चलेगा? इसको इंटरचेंज कर दिया मैंने, ठीक है, डिवाइड बाय 29। इसको मैं अलग अलग कर सकता हूं, है? ओके, इसको ऐसे समझो आप, ऐसे तो लिख ही सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं ना, ठीक है ना? अच्छा, ऐसे लिख दूं 26, 2 इंटू 28 लिख देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये चलेगा? ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं 26 की पावर 2 होल की पावर 28 इंटू 26 डिवाइड बाई, ठीक है। अब दो चीज का प्रोडक्ट करके रिमाइंडर निकालने से अच्छा है इंडिपेंडेंटली रिमाइंडर निकाल दूं। 26 को 29 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 26 ही आएगा, इंटू ये वाला, इसका आंसर क्या आएगा? -1 + 1 नहीं करेंगे? फिर कैसे होगा? मान लो इसको ऐसे करता हूँ, चलो समझाता हूँ ऐसे। 26 का स्क्वायर 28 है, -1 + 1 डिवाइड बाई 29। इफेक्टिवली इसका रिमाइंडर +1 आ रहा है, ध्यान रखना -1 + 1 बारी में 1 ही आएगा हमेशा। तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 26, अंदर का रिमाइंडर आएगा 1 डिवाइड बाई 29, तो रिमाइंडर कितना आया? 26। ये आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2.16। स्क्वायर का मैटर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे a 26 था, अब a की वैल्यू 26 स्क्वायर हो गई। कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 26 स्क्वायर और 29 में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ये तो समझ में आ रहा होगा? समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? When there is no common factor between 26 and 29, तो 26 का स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, बारी बारी मल्टीप्लाई कर लो, उसमें कोई कॉमन फैक्टर बाहर से तो आएगा नहीं, इसलिए स्क्वायर का कोई मतलब नहीं है। एक और एग्जांपल मान लो, इसके ऊपर वाला भी यही है, 5 की पावर 119, 5 की पावर 119 डिवाइडेड बाय 59। 59 - 1, अपने को ऊपर क्या चाहिए? 58 चाहिए, 58 चाहिए ना, तो 119 58 से डिवाइड कर देते हैं, यही बनेगा ना, 116 और 3। तो इसका मतलब अपन इसको लिखते हैं 5 इंटू 58 इंटू 2 + 3 लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 की 58 की पावर 2 पावर 28 58। क्यों लिख रहा हूं?
अंदर कुछ भी चलेगा मेरे को 5 है, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, कर सकता हूं ऐसा, डिवाइड बाय 59, तो ये तो आएगा 125। 125 को 59 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर निकाल लेते हैं, तो 125 और ये बनेगा 118 है ना। इसका रिमाइंडर 7 बचा, इनटू इसका रिमाइंडर 1 बचेगा, प्लस माइनस 1 59, तो ओवरऑल रिमाइंडर 7 बचेगा। ये आंसर है इसका। जब भी कोई रिमाइंडर का क्वेश्चन आए जिसमें डिनोमिनेटर प्राइम हो, बहुत ज्यादा चांस है कि ये वाला मेथड लगेगा। मैं तो कह रहा हूँ 60% चांस है, आधे से ज्यादा बार में क्वेश्चंस में ये वाला मेथड लगा के आप सवाल हल कर सकते हो। ठीक है, इसमें डिनोमिनेटर प्राइम होना चाहिए बस। आ रही बात समझ में यहां तक? इसके बाद है एक थ्योरम बोलते हैं विल्सन्स थ्योरम। ठीक है, अब हम आते हैं विल्सन थ्योरम। विल्सन कौन था? वैसे एक फिल्म में भी है विल्सन। कास्टअवे देखी है? कास्टअवे देखना प्राइम प्रो में डाउनलोड करके। कास्टअवे सुनी हो, देखी हो, अच्छी मूवी है। नहीं कास्टअवे तुम लोग, हाँ पता नहीं, हम लोग बूढ़े हो गए, कुछ नई नई मूवीज देखते हो गए आजकल, कुछ पता नहीं। मैं तो वही एवेंजर पता है मेरे को, पता नहीं उसके अलावा कुछ तो नया क्या आ रहा है, आई हैव नो क्लू। आ रही है लेटेस्ट क्या आई है कुछ इंग्लिश में? मनी हाइस्ट, कौन सी? वॉर ऑफ टुमारो। अच्छा, अच्छी है क्या? प्राइम में है, देखी नहीं, मैं देखता हूँ चलो। और टुमारो है ना प्राइम है। ब्लैक विडो, वो एवेंजर्स वाली तो नहीं? ब्लैक विडो वो वाली मूवी तो नहीं है मार्वल की? अच्छा वो वाली है, अच्छा अच्छा। ब्लैक, हाँ, और घुमा फिर आगे सब घुमाया था। चलो, मैं तो भी कल देखी है एक मूवी, द कोरियर असैसिन। अच्छा मूवीज, हाँ वो तो है थोड़ा। हाँ वो तो कर दें, जो पैसा जो मूवी बनाएगा वही करेगा। खैर देखना, उसमें एक विल्सन भी है। अरे अभी कहाँ, अभी तो ब्रेक लिया था मैं, अभी विल्सन थ्योरम पढ़ो पहले। हाँ तो बस, हाँ होने वाला है। विल्सन थ्योरम बोलता है, विल्सन थ्योरम बोलता है p minus 1 factorial plus 1 is always divisible by p if p is a prime number। मतलब मान लो डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर है 13, तो 12 फैक्टोरियल जमा 1 इसको डिवाइड कर देगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा 13 फैक्टोरियल से। ये विल्सन थ्योरम बोलता है फैक्टोरियल 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 है, ध्यान रखना ये। हाँ प्राइम, क्योंकि दिक्कत प्राइम में ही आती है। समझ में आ रहा है? अच्छा मान लो मैंने कहा 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 19, रिमाइंडर क्या होगा? हाँ फिर, हाँ -1 होएगा। -1 का क्या मतलब है? 18। समझ में आ रहा है? हम इसका रिमाइंडर 0 है, ध्यान रखना। तो अगर हमें 18 फैक्टोरियल चाहिए तो मुझे +1 और -1 दोनों करना पड़ेगा। तो मैं इसको अलग से करता हूँ, 18 फैक्टोरियल +1, इसका रिमाइंडर अलग निकालते हैं, इसका रिमाइंडर अलग निकालते हैं। इसका रिमाइंडर 0, इसका रिमाइंडर -1, ओवरऑल रिमाइंडर -1। 19 से डिवाइड किया, रिमाइंडर -1 यानी +18, ये आंसर है। समझ में आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है कैट में आया हुआ, p-2 फैक्टोरियल बाय p का रिमाइंडर निकालना है। मान लो 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 19, इसका रिमाइंडर तो आपको पता चल गया कि 18 आएगा।
समझ में आ रहा है? मान लो नीचे 17 होता, ऊपर 16 फैक्टोरियल, तो रिमाइंडर क्या आता? 16 आता, वही चीज आ जाती है ना, -1 का मतलब वही आ जाती। अगर मान लो क्वेश्चन बोल दे 17 फैक्टोरियल बाय 19, इसका रिमाइंडर निकालना है अपने। समझ में आ रहा है? अब एक कम हो गया, P-2 हो गया। स्टैंडर्ड रिजल्ट में डिराइव करके दिखा रहा हूं आपको कैसे बनेगा। हमें पता है 18 फैक्टोरियल बटे 19 का रिमाइंडर 18 है, ठीक। 18 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 18 इंटू 17 फैक्टोरियल बटे 19। इसका मतलब है इन दोनों का अगर मैं अलग अलग रिमाइंडर निकाल दूं तो रिमाइंडर 18 ही बनना चाहिए। इसका रिमाइंडर 18 है, ये चीज दोनों सेम ही तो है। 18 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं ना, 18 इंटू 17 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते। सुनो सुनो, इन दोनों का हाँ, इन दोनों का प्रोडक्ट रिमाइंडर 18 आना है, लेकिन सिर्फ 18 तो सिर्फ इसी पोर्शन से आ गया, तो इसका मतलब इस पोर्शन से एक ही चीज पॉसिबिलिटी है 1। 17 फैक्ट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 17 फैक्टोरियल बाय 19 का रिमाइंडर 1 है। क्वेश्चन खत्म, ये स्टैंडर्ड आंसर है। P-2 फैक्टोरियल का आंसर हमेशा 1 आएगा। P-2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय P, रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा इफ P इज प्राइम। ठीक है, P-3 में बदलेगा, वो पंगा होता है। लेके देखना है पंगा, भी ट्राई करें, करो। अच्छा, तुम्हें पता है मेरे, मैं ही उलझूंगा। तुम बैठ के देखोगे। चलो हेल्प, ना ना फिर मैं नहीं करता, मैं तो कहता बहुत अच्छा, घर जाके करो। चलो 17 है ना, अब मान लेते हैं अपने को चाहिए 16 फैक्टोरियल बाय 19, यही बात है। हमें पता है 17 फैक्टोरियल बाय 19 का रिमाइंडर 1 है, तो इसका मतलब है 16, एक मिनट, 17 इंटू 16 फैक्टोरियल बटे 19 का रिमाइंडर 1 आना चाहिए। अच्छा, इसके हिसाब से रिमाइंडर 17 आ रहा है। सिर्फ अगर हम ये वाला पोर्शन लें, इसका रिमाइंडर तो 17 आ रहा है, यानी 17 इंटू कुछ करूं और जब उसको 19 से डिवाइड करूं तो 1 आना चाहिए। समझ में आ रही बात? इसका मतलब क्या है? हाँ, यानी 17 इंटू समथिंग डिवाइडेड बाय 1 शुड बी रिमाइंडर 1। तो यानी कि 17 के, नहीं 17 इंटू समथिंग, एक मिनट, 17 इंटू समथिंग डिवाइडेड बाय 19 should be 1. So when this value is divided by 19 something, I must get a remainder of 1. यानी 19K1 should be equal to 19K1 plus 1 should be equal to 17K। ये फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। अब मुझे कुछ ऐसा नंबर चाहिए, अब मैं ये ढूंढ रहा हूं कि ऐसा K1 और K2 क्या हो जो इसको सेटिस्फाई कर दे। मान लो मैंने 1 डाला तो 18 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर मैंने मिनिमम, हाँ तो +1 है, हाँ कोई बात नहीं, हाँ तो ये मान लेते हैं 2 दिखा, तो ये कितना बनेगा? 34 बनेगा। क्या समथिंग 19 इंटू कुछ करके, यानी 33 आना चाहिए बेसिकली, 19 का मल्टीपल 33, ऐसा तो होगा नहीं। अगली पॉसिबल वैल्यू है 51, ठीक है। 17 इंटू 3 करेंगे 51, -1 19 के टेबल में नहीं आएगी। अगली वैल्यू बनेगी 68, -1 करेंगे 67, 67 19 के टेबल में नहीं आएगा। उसके बाद क्या होएगा? 85, -1 करेंगे 84, 19 के टेबल में आएगा 84? नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद 85 इंटू 17, 7 5 12, हाँ से ले 102, 101, 101 आएगा इसकी टेबल में, 19 की टेबल में नहीं आएगा। फिर हम ले सकते हैं 119, हाँ 119, 118, 118 आएगा 19 की टेबल में। 19 5 जा 95, 6 में नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा हमारा? क्या था? 119 था ना, 119 प्लस इतना
136 माइनस 1 135 135 19 की टेबल में आएगा? नहीं आएगा। अगली वैल्यू निकालो, 1 मिनट, अभी बस क्लास में हूँ, 10 मिनट में करता हूँ जी आपको, है ना। ओके। अगला क्या है? 150 153 माइनस 1 152 152 आएगा 19 के टेबल में? नहीं। 8 9 जा 72, 8 एकम 15 आएगा। ठीक है, तो 153 कितने में गया था? 153 17 में, 17 इंटू 9 में, तो इसका मतलब है यहाँ 9 आना चाहिए। इसका मतलब है इसका रिमाइंडर जो है 9 बनना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 19 का रिमाइंडर 9। अब इसमें ट्राई करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? इसका 9 बनेगा तो इसका 17 बनेगा, तो कितना बनेगा? 153। 153 को 19 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, यही बात है ना। तो इसका आंसर है 9। ये पंगा है इसके साथ। पहले वाले के साथ कोई दिक्कत नहीं है। p माइनस 1 फैक्टोरियल बाय p, आंसर p माइनस 1, काम खत्म। p माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p, आंसर इज 1, काम खत्म। p माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय p, पंगा शुरू। 2 वेरिएबल साइमल्टेनियसली निकालने इसमें अननोन क्वांटिटी में। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं इसको, ये तरीका है विल्सन्स का निकालने का। ठीक है, इसके बाद आता है रिमाइंडर 10 प्लस n माइनस 1 एंड प्लस 1। हाँ बस ये आखिरी है, बस अभी 8 मिनट है तो हो जाएगा, चिंता ही कर रहे हो। अगला हम करेंगे डिविजिबिलिटी रूल 10 की पावर n प्लस माइनस 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम माइनस 1 का कर लेते हैं। n मतलब कुछ भी हो सके, यानी 10 की पावर 1 माइनस 1 कितना होगा? 9। 10 की पावर 2 माइनस 1 कितना होगा? 99। 10 की पावर 3 माइनस 1 कितना होगा? 999। 10 की पावर 4 माइनस 1 कितना होगा? 99। मतलब इसका रूल करना है अपने को। मान लेते हैं मैंने कहा 3 4 7 8 9 2 1, 9 से डिवाइड करना है। डिविजिबिलिटी रूल याद है क्या था? सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। इसमें सम करो, 3 9 और 3 12, 12 8 20 7 27 और 34। तो 34 नहीं हो रहा, लेकिन 34 को 9 से डिवाइड करो एक बार, रिमाइंडर क्या आएगा? 7 आएगा। 9 से 7 आएगा, इसका मतलब इसका रिमाइंडर 7 है। यही तरीका है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता तो कंप्लीटली डिविजिबल था। रिमाइंडर 0 नहीं आया, जो रिमाइंडर आया वही आंसर है, इसका काम खत्म। जो 9 का रूल है वही है ये बेसिकली। 9 का रूल क्या है? सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। अगर नहीं हुआ तो क्या मतलब है? नहीं हो रहा मतलब बच रहा है रिमाइंडर, वो वही रिमाइंडर आएगा जो 9 से डिवाइड करने पे आएगा। अगर इसको 9 से डिवाइड करोगे ना तो यही रिमाइंडर आएगा। 99 में पावर 2 है ना, 2 को पकड़ो, 21 89 47 03, इनको पकड़ो, सबको जोड़ना है। इसमें सिंगल सिंगल डिजिट जोड़ रहे थे ना, इसमें 2 डिजिट का नंबर बनाना। 21 प्लस 89 कितना हो गया? 0 110। फिर क्या बचा? 47। ठीक है, 157 और फिर 3 160। 160 को 99 से डिवाइड कर दो, 61। यही आंसर है इसका। ठीक है, बिल्कुल। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें 123 123 123 ऐसे कितने बार है? 300 डिजिट है, 300 डिजिट है। बोल रहे इसको अपन 999 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये निकालना है अपने को। अब ऐसे 3-3 के सेट बनाने अपन ने, कितने सेट बनेंगे? 100। फिर उनको क्या करना है? ऐड। तो 123 जमा 123 जमा 123 जमा 123 100 बार जोड़ोगे कितना? 123 जमा 123 जमा 123 100 बार कितना होएगा?
1 2 3 इंटू 100 इतना हो गया। ठीक है, या तो ऐसे कर लो, नहीं तो वापस 3 को जोड़ दो। 9 में मैंने कहा था ना इन दोनों को जोड़ लो। 312 को 9 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 312 ही आएगा। यही आंसर है, देखो चेक करो किताब में। समझ में आ रहा है? तो जो नियम 9 के लिए है उसी को एक्स्ट्रापोलेट किया हुआ है, यहाँ पे एक्सटेंड किया हुआ है। जो हमने पढ़ा है बचपन से वो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है, हमने उसको एक्सटेंड करके रिमाइंडर निकालने का तरीका निकाल लिया, उसी को और एक्सटेंड करके 999 9999 इन सब का निकाल लिया। अभी आते हैं। बस +1 वाला बता दूं उसको सुन। नहीं तो ऐसा कर, इसको डिवाइड करके देख ले तो भी वही आएगा। मतलब शॉर्टकट का शॉर्टकट घुसा रहे हैं अपन, बस और कुछ नहीं कर रहे। ओके, अब ये है 10 की पावर n+1। ले ले ऊपर करता हूँ, खींच 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 भेजूंगा वैसे मैं, तुम्हें चिंता ना करो, इसकी रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा आज। ठीक है, अब हम ये वाला मेथड देखते हैं। 10n+1 यानी कि 10 की पावर 1+1 करेंगे तो 11, 10 की पावर 2+1 करेंगे तो 101, 10 की पावर 3+1 करेंगे तो 1001, 10 की पावर 4+1 करेंगे तो, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं कोई भी रैंडम नंबर ले लेते हैं, 3 4 7 8 9 1। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? ऑल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस, इसको जोड़ेंगे, ये कितना बनेगा? 9 4 13 -19, रिमाइंडर कितना आया? -6। -6 का मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर अपन 3 4 7 8 9 1 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 5 आएगा। तो 11 3 33, 1 7 1 11 6 8 6 66 2 9 2 22 7 1 6 6 5, ये रिमाइंडर। ठीक है, ये 11 का नियम है, ऑल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस। हम ये देखते थे अगर वो नंबर डिविजिबल हो गया तो 11 से डिविजिबल है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन अब अगर नहीं हुआ तो जो आया वो रिमाइंडर है। समझ में आ रहा है? अब मान लेते हैं यही क्वेश्चन होता 3 4 7 8 9 1 डिवाइड बाय 101। अब इसमें क्या करना है अपने को? हाँ, इसमें अब हम 2 के पेयर बनाएंगे, ये ये ऑल्टरनेट तो 91 और यहाँ पे क्या बना 47, तो ये बनेगा 8 13। इधर जो एक पेयर बचा वो 78 और यहाँ कोई पेयर बचा नहीं। 91 और 34 होएगा। क्यों 70 30? हाँ 34 होगा, सॉरी। ये 91 एक पेयर है, एक ये है और एक ये। ठीक है, तो 91 34 कितना हो गया? 5 125 -78 7 5 47। इसका मतलब है इसका रिमाइंडर है 47 आ गया डिवाइड बाय 101, तो रिमाइंडर कितना हो गया? 47। काम खत्म। ठीक, अगर ये 1001 होता तो 3 के सेट बनाते, पहला तीसरा पांचवा सेट लेते और सॉल्व करते। मान लो यही वाला क्वेश्चन है जो ऊपर वाला क्वेश्चन आपने ने किया था 123 वाला। मान लेते हैं मेरे पास 123 100 डिजिट्स हैं, डिवाइड बाय 1001 है, तो अपन क्या करेंगे? 3 के सेट बनाएंगे, मतलब आखिरी में भी 123 बनेगा, एक ऐसे 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 ऐसे, पहला सेट, तीसरा सेट, पांचवा सेट, सातवां सेट, ऐसे कितने सेट पकड़ेंगे अपन? 50। उनका सम कितना बनेगा? 123 गुना में 50। जो बच गए वो भी यही बनेगा। इसका डिफरेंस डिविजिबल बाय 1001, रिमाइंडर क्या है? 0। इसका मतलब है ये पूरा नंबर 1001 से कंप्लीटली है। हाँ हाँ हाँ, इसको 50 कर देते। ठीक है, तो बस यही क्वेश्चन है इसके अंदर, बाकी वही आइडेंटिटीज हैं।
ठीक है, तो इसको पढ़ लेना अच्छे से, ये अच्छा चैप्टर है बहुत। है ना? चलो। ओके। हाँ जी, ऑनलाइन समझ में आया हो या नहीं? यस अच्छा चलो, ज्योति है, बाकी तो भावना, बंटी, यस सर। चलो समझ में आई बात? यस सर। ठीक है। मान्या? Yes, sir. चलो ठीक है। मैं दिस टेक्स केयर ऑफ योर टुडेज क्लास। आई विल सेंड यू द PDF and the recording as well. ठीक है, Okay, चलिए, sir. थैंक यू Thank you, सो, sir. थैंक यू। ओके।